Let us now continue the lesson solution, in which we have already discussed mass percentage, volume percentage, molarity and molality. I think you have done practice on the numericals related to these topics. Concentration, we find concentration, different methods of finding concentration in the solution. Next, today we will study next three methods to find the concentration, that is the mole fraction, normality and formality. Mole fraction is just similar to the mass percentage. Only the difference is that in the mass percentage we solve by percentage, that is by multiplying by 100, but in mole fraction we only find fraction of moles present in the solution. In mole fraction, it is the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles. Total number of moles, which total number of moles? Solute and solvent. The moles of solute and the moles of solvent present in the solution, and it is denoted by X. ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲ ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੋਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਮੋਲਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 2 ਮੋਲਸ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 98 ਮੋਲਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੋਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੇ ਕਿ 2 ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਔਰ 98 ਮੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਔਰ 98 ਮੋਲਸ ਪਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਉਸ ਦਾ, ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ A ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋਲਿਊਟ ਨੂੰ A ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਮਤਲਬ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਲੱਸ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 2 ਮੋਲਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਔਰ 98 ਮੋਲਸ ਵਾਟਰ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 100, ਟੋਟਲ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ 98, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਓਵਰ 100। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਓਵਰ 100 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0.02। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਲਸ ਸੀਗੇ ਔਰ 98 ਮੋਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਸ ਕਾਹਦੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ 0.02। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੋਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਐਕਸ ਏ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਐਕਸ ਬੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਐਕਸ ਏ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਐਕਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। एन ए ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਓਵਰ एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट प्लस हुण आपां बी कंपोनेंट का कढदे हां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। दोनों की एडिशन किहदे बराबर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किहदे हो गया 1। यही किया ना आप एक्स ए प्लस एक्स बी है जोड़ा वो 1 के बराबर है और एक्स ए की है, एक्स ए की है एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी और एक्स बी की है एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। मतलब इस तरह के नाल भी तुसी इहदे नाल रिलेटेड जे इस तरह कोई नूमैरिकल आउंदा तुहानूं तां तुसी उस नूं भी सॉल्व कर सकते हो। इस तो बिना एक होर इहदे विच मास फ्रैक्शन तुहाडी बुक दे उत्ते दिता है बेटे। नॉर्मैलिटी नूं डिस्कस करन तो पहलां मैं तुहानूं मास फ्रैक्शन बारे दसदा। जिमें कि आपां मोल फ्रैक्शन की गल कीती है, मोल फ्रैक्शन दे विच आपां की गल कीती है मोल्स दी, और मास फ्रैक्शन दे विच किहदी गल करांगे, देखो नाम तो ही अंडरस्टूड आ आपां मास की गल करांगे, जानी कि वेट किन्ना उसका। तो उत्थे की लिखांगे आपां डबल्यू ए ओवर डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी। डबल्यू ए है जिहड़ा एक कंपोनेंट हो गया तो हेठां दोनों कंपोनेंट्स का जोड़ हो गया। इस तरह जेकर आप डबल्यू बी का कढ़ना या दूसरे कंपोनेंट का कढ़ना तो हेठां लिखांगे डबल्यू बी ओवर सेम होएगा डबल्यू ए प्लस डबल्यू बी। इत्थे इहनूं आपां कह दिंदे हां मास फ्रैक्शन। कि मास फ्रैक्शन की हुंदा किसी भी गिवन कंपोनेंट का पर यूनिट मास हो गया। हुण तुसीं कोरिलेट करो इसनूं, आपां मास परसेंटेज भी इस तरह ही कढ़िया। जे तुहानूं याद होवे पिछली वीडियो दे विच आपां कीता मास परसेंटेज भी बेटे इस तरह ही कीता सीगा आपां कि एक दा मास लै लिया आपां ओवर सल्यूट ते सॉल्वेंट दोनों के मास का एडिशन, पर वो आप परसेंटेज कढ़ी सी ते आपां इहनूं मल्टीप्लाई करता सी 100 दे नाल। इत्थे आपां मल्टीप्लाई नहीं किया, पर जेकर मास फ्रैक्शन दे विच भी वो परसेंटेज कढ़न नूं कह दिंदा तां तुसीं 100 नाल मल्टीप्लाई करोगे। जानी कि इत्थे मास परसेंटेज ते मास फ्रैक्शन ने जिहड़े आलमोस्ट एक दूसरे दे बराबर ने। ठीक है जी, इक्को जिहे ने कोई इस तरह ही वॉल्यूम परसेंटेज कढ़ सकदे हो तुसीं। जिवें कि मास फ्रैक्शन कढ़ी हैगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋरिलेट किहनूं कीता आपां मास परसेंटेज नूं। इस तरह आप वॉल्यूम फ्रैक्शन भी कढ़ सकते हैं। वॉल्यूम फ्रैक्शन दे विच की लाओगे फिर वॉल्यूम वी ए पा दोगे, वी ए प्लस वी बी। दूसरे जेकर दूसरे कंपोनेंट का कढ़ना तो वी बी ओवर वी ए प्लस वी बी और दोनों का जोड़ करोगे जे तो वह एक दे बराबर होएगा। सेम फार्मूला इस तरह जेकर ये आप परसेंटेज कढ़ांगे तो वॉल्यूम परसेंटेज हो जाऊगा, जेकर इत्थे तक कढ़ देंगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया। मैनूं लगदा भी तुहानूं समझ आ गया होगा हुण तां कि इस तरह आपां मास परसेंटेज और मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन ते मोल फ्रैक्शन ने जिहड़े सारे दे सारे आपस दे विच किस तरह कोरिलेट करदे आ। नैक्सट करदे आं आपां हुण नॉर्मैलिटी। Normality. What is normality? It is the number of gram equivalents of the solute dissolved per liter of the solution. It is denoted by capital N. कि number of gram equivalents और वॉल्यूम लेना आप ये सोल्यूशन का। देखो वॉल्यूम की गल हो रही है हुण ये, इट मीनस वॉल्यूम चेंज हो जाता टैंपरेचर के नाल। इट मीनस नॉर्मैलिटी की है फिर टैंपरेचर पर डिपेंडेंट है। एक ये गल तो याद रखियो तुसीं। हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि ग्राम इक्विवेलेंट्स की हुंदे ने। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। तो हुण इक्विवेलेंट मास की हुंदा है, ध्यान नाल समझो बेटा। ये
वैसे तो तुहाडा +1 का सी टॉपिक, इत्थे मैं तुहानूं समझाउणी आ चंगी तरह। ग्राम इक्विवेलेंट की हुंदे ने? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास किहदे बराबर आ? मोलर मास ओवर वैलेंसी, जां आपां वैलेंसी नूं एन फैक्टर भी कह दिंदे हैगे। हुण मोलर मास तो देखो तुहानूं पता कि की हुंदा आ, कि मॉलीक्यूल का मास हो गया जिहड़ा, जिवें कि आपां वाटर का लैंदे H2O, फॉर एग्जांपल आपां वाटर का लिया H2O, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ मोलर मास किवें लैंदे? हाइड्रोजन का एक हुंदा ना, तो दो ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एटम्स, 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो यह बन गया 18। ये तो हो गया ਉਹਦਾ मोलर मास। हुण वैलेंसी कित्थों आ गई? एन फैक्टर कित्थों आया? सानूं किवें पता लगू कि वैलेंसी कितनी आ ते एन फैक्टर की है? सब तो पहलां तां तुहानूं दस्सां मैं कि इक्विवेलेंट वेट जां इक्विवेलेंट मास की हुंदा। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ H2O2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। H2 ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਨੇ, ऑक्सीजन पर इधर 1 है, इधर 2 ने, तो इनू आप मल्टीप्लाई कर दें इतने मूरे 2, स्टॉकियोमेट्रिक ला दें मूरे 2, तो ये हम हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 4, तो ये मूरे भी आप 2 लगा दें। फिर इस तरह आप बैलेंस करते हैं इसमें। ये तो सूँ पता लगता कि 2 मोल्स ने जोड़े हाइड्रोजन के तो 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करके 2 मोल्स पानी के बनाते हैं। पर जेकर असी इसनों बैलेंस करन तो बिना ही पता करना हो, बैलेंस करन तो बिना पता किमें करांगे असी कि इक्विवेलेंट वेट कितना रिएक्शन के पार्टिसिपेट किया, कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना जिन्हें पार्टिसिपेट किया ऑक्सीजन ये रिएक्शन के, और पानी के मॉलीक्यूल बनाया, और ऑक्सीजन दे ने कितना पार्टिसिपेट किया, उन्होंने आप इक्विवेलेंट मास कहने हैं कि उसका इक्विवेलेंट मास कितना पार्टिसिपेट कर गया। जिवें कि मैं तुहानूं समझाउणी आ, इक्विवेलेंट मास मान लो एक छोटी जी होर एक एग्जांपल दिन्नी आ तुहानूं मैं। HCl की आप गल करिए, HCl है जदों इनू आप पानी दे विच पाउने आगे, जानी कि एक्वा सोल्यूशन बनाने हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो यह किहदे विच टुटदा? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। हुण इहने हाइड्रोजन आयन एक दिता ना, एक हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिडिक। पहला तो तुसीं जिहदा इक्विवेलेंट मास आप तुसीं मतलब लभना है, पता करना है कि इक्विवेलेंट मास कितना, उन्होंने पहला तुहानूं देखना पऊगा कि यह एसिड आ कि जां यह बेस आ जां यह सॉल्ट आ। जे तो वह एसिड आ, तुहानूं पता है इन्हां गल्लां बारे कि जिहड़ा हाइड्रोजन आयन दूगा वह एसिड आ, प्रोटोन रिलीज़ करूगा तो एसिड आ। किन्ने प्रोटोन रिलीज़ कर रहा? ये विच देखो हुण हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे विच एक हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा ना। हुण इहदा तुसीं मोलर मास कड्ढो, देखो मोलर मास हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का कितना हो गया 35.5, ये बन गया 36.5। तो हुण जे आपां इहदा इक्विवेलेंट मास कड्ढना वो किहदे बराबर होगा? क्योंकि इन्हें हाइड्रोजन 1 रिलीज़ किया ना, ये इहदी वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन रिलीज़ किया तो इन्हें डिवाइड बाय 1 करोगे तुसीं, तां कितना आ गया इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 36.5। हुण तुसीं कहोगे तो सेम ही आ गया मैडम, कोई फर्क नहीं पिया। हुण आपां होर एक एग्जांपल कर देंगे। यही कारण है कि तुहानूं बेटे समझ नहीं पैंदी कि इक्विवेलेंट मास कई थावां दे उत्ते तां न्यूमैरिकल्स दे उत्ते सेम ही हुंदा, ते कई थां ते तुसीं कहने भी मोलर मास दे नालों डिफर करदा है। तो उही तुहानूं समझाउण वास्ते मैं ये दस रही हाँ कि हुण आपां एग्जांपल लै लईए H2SO4 दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ सोल्यूशन बनाने आ ਤਾਂ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਇਹ हाइड्रोजन ਦੇ 2 आयन ਦਊਗਾ, 2, ठीक है जी, प्लस सल्फेट का 1 ਦਊਗਾ, 1 सल्फेट का आयन ਦਊਗਾ, -2। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ पार्टिसिपेट ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 हाइड्रोजन ਦੇ ਇਹਨੇ आयन ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ कि 2 प्रोटोन रिलीज़ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ एसिड आ, 2 प्रोटोन रिलीज़ कर दिते। हुण तुसीं इसका इक्विवेलेंट वेट कड्ढो। पहलां तां आपां मोलर मास कढदे हां, इहदा हाइड्रोजन का कितना हुंदा? 1, किन्नियां हाइड्रोजनां ने 2, सल्फर हुंदी आ 32 प्लस ऑक्सीजन किन्ने हुंदे ने 16, किन्ने ने 4, ये हो गया 2 + 32
64 ऐड करके देखो कितना आ गया 4 2 6 तो 8 6 3 9 98 आ गया ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ 2, ਤਾਂ 92 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 49। ਤਾਂ ਇਹ 49 ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਊਗਾ ਇਹ OH ਆਇਨ ਦਊਗਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 23 16 ਆਕਸੀਜਨ +1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40, ਇਹਦਾ 40 ਆ ਗਿਆ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 1 ਅਤੇ 40 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ। 40/1 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਇਨਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸਾਲਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਔਰ ਬੇਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਆਇਨਿਕ ਸਾਲਟਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਕਲੋਰੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 23 ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ 35.5। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.5 538 325, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 58.5 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ, ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ K2CO3 ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ +2 ਚਾਰਜ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਹੋ ਗਈ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ 'ਤੇ 1 ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ = 58.5, ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ = ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਟਰ। ਜੇਕਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੀਟਰ, ਜੇਕਰ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ, ਅਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਓਵਰ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਓਵਰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਓਵਰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਓਵਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਟਰਸ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ,
जेकर तुसीं नुमैरिकल्स कड्ढे होणगे तो उस वीडियो नूं ध्यान नाल देखिया होऊगा, समझिया होऊगा, तो तुहानूं जरूर याद आ जाऊगा कि यह की आ मोलैरिटी। मोलैरिटी च आपां कीता सी मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स आपां किवें कड्ढे सी मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास। ठीक है ना, ये आ गया ना मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटरस दे विच। तो इस मतलब आप मोलैरिटी लिख सकते हैं हुण। ठीक है, इसनों आपां हुण मोलैरिटी लिख सकते। इट मीनस की बन गया है एन इज इक्वल टू एम मोलैरिटी इंटू वैलेंसी और एन फैक्टर। किताब दे विच तुहाडी दे विच किवें दिता होया, एक बुक के उत्ते दिता तुहाडे नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास। इत्थे भी बच्चे काफ़ी पजल हो रहे हैं कि इस तरह मतलब तुसीं तां भी एन फैक्टर दसदे हो तो इत्थे एन फैक्टर नहीं लिखिया होया। देखो इत्थे भी एन फैक्टर ही निकलूगा, इहनूं ध्यान नाल देखो। मोलर मास ओवर इक्विवेलेंट मास, हुण इक्विवेलेंट मास किहदे बराबर हुंदा, हुणे मैं तुहानूं दस हटी हैगी। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास ओवर वैलेंसी। हुण वैलेंसी पलट के ऊपर चली जाऊगी, मोलर मास ओवर मोलर मास इंटू वैलेंसी। मोलर मास दे नाल कैंसल हो गया, रह की गया मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। हो गया ना सेम ही, इस करके पजल नहीं होना, सेम ही है ये सारा कुछ। नॉर्मैलिटी है जी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हाँ जी, हुण देखो फॉर्मैलिटी। वट इज़ फॉर्मैलिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ द सल्यूट dissolved per liter of the solution. It is denoted by capital F. F ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ डिनोट करना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की फार्मूला मास दे। हुण फार्मूला मास की हुंदा है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, जिवें कि पहला मैं सोडियम क्लोराइड का तुहानूं कढ के दिखाया, उसका जिहड़ा उस फार्मूला बन गया ना सोडियम क्लोराइड है, जिवें इत्थे फार्मूला बन गया NaCl, एक आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बन गया। यदा जो तुसी जोड़ करोगे 23 + 35.5, यदा फार्मूला मास आ गया। फिर ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ने एक्चुअली ये तुहाडी बुक ते लिखा नंबर ऑफ फार्मूला मासिस ऑफ सल्यूट, तो नुमैरिकल कड्ढण वाले बच्चों को थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है। फिर एक्चुअली की ने मोल्स ऑफ फार्मूला मास आ ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम लेना आपां लीटर दे विच। बस ये रिलेटेड ज़्यादा वैसे देखो थोड़ी बुक दे विच नुमैरिकल्स ने जिहड़े आपां मोलैरिटी ते मोलैलिटी दे ही कड्डांगे, तो इस दे फॉर्मैलिटी का तो थोड़ी बुक के उत्ते 1 या 2 की नुमैरिकल्स ने, ज़्यादा तो है नहीं गे। तो आपां हुण कढ़दे हैं नुमैरिकल। लो बेटे हुण आपां नुमैरिकल कढ़दे हैं। फर्स्ट नुमैरिकल है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल and water in a sample of rectified spirit which contains 95% ethanol by mass। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो नुमैरिकल ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ 95% ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ। 95% ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 95% ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਆ, इथेनोल यानी कि अल्कोहल या इथेनोल कह लो तुसीं, इहदे विच इथेनोल दिता तो इथेनोल ही बोलांगे आपां, वो 100 ग्राम सोल्यूशन दे विच प्रेजेंट है। 100 ग्राम सोल्यूशन दे विच प्रेजेंट, यानी कि सोल्यूशन कितना बनिया होया 100 ग्राम। इहदे लई पहलां सब तो पहलां आपां इथेनोल दा की कड्डांगे, फिर आपां मोल्स कड्ढने ने, आपां इथेनोल दे भी कड्ढने ने, पानी दे भी कड्ढने ने। मोल फ्रैक्शन दा फार्मूला तुहानूं मोल फ्रैक्शन दोस्तों पहलां फार्मूला होना चाहिए। आपां की करने नंबर ऑफ मोल्स एक कंपोनेंट दे ओवर नंबर ऑफ मोल्स फिर दोनों कंपोनेंट का जोड़ करना। हुण जे आपां इथेनोल का भी कढ़ना, ये वाटर का भी कढ़ना। हुण इथेनोल का जे कढ़ना आपां नूं इथेनोल के पहलां नंबर ऑफ मोल्स कढ़ने पैणगे। नंबर ऑफ मोल्स कढ़न के लिए आपां नूं की उहदा मोलर मास पता होना चाहिए है, तो मास आपां नूं पता ही है 95 ग्राम। ठीक है, ये की आ कि 95 ग्राम आ जिहड़ा वो इथेनोल डिजोल्व करके सोल्यूशन कितना बनाया होया 100 ग्राम का, यानी कि 95 ग्राम अपने को इथेनोल है जिहड़ा आपां इहदे विच डिजोल्व किया। इथेनोल का फार्मूला हुण लिखो, ये तुहानूं फार्मूला भी आना चाहिए C2H5OH। ठीक है जी, हुण इसका कढ़ लो तुसीं मोलर मास। कार्बन का कितना हुंदा है 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन 16 + 1 कितना बन गया है 24 + 5 + 16 + 1।
ये बन गया 46। ये तो इसका मोलर मास आ गया। हुण जेकर आपां हुण मोल्स कढने ने, मोल्स कढण लई की करदे हुंदे आ आपां मोलैरिटी दे विच की कीता सी, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट दा मास कितना है 95 ग्राम ओवर मोलर मास कितना हो गया 46। तो ये तुहाडा कैलकुलेट करके आ जाऊगा 2.06। इन्ने मोल बन गए, किहदे बन गए, इथेनॉल दे C2H5OH ये बन गए। हुण इस तरह आपां पानी दे कड्डांगे। पानी हुण इहदे विच कितना है, देखो आपां 95 ग्राम डिजोल्व किया इथेनॉल नूं और सोल्यूशन बनाया आपां 100 ग्राम का। तो यदा मतलब 100 दे विच जे आपां 95 कढ़ दिए तो 5 ग्राम इहदे विच की है वाटर। ठीक है जी। हुण वाटर दा आपां कढ़ लो की हुंदा है मोलर मास। हाइड्रोजन हो गया 1, हाइड्रोजन 1 किन्ने ने 2 + 16 = 18। मास कितना हो गया इसका 5/18। तो ये आलमोस्ट कैलकुलेट करके आ जाऊगा 0.277। इन्ने मोल्स किहदे बन गए, पानी दे। बस हुण इसनूं कैलकुलेट कर लो। हुण आपां कड्ढना की है, दोनों दे आपां मोल फ्रैक्शन कड्ढने ने। हुण सब तो पहलां तुसीं लिखोगे मोल फ्रैक्शन X किहदा, इथेनॉल दा। इथेनॉल तो ई पा लो इहदे, तां इत्थे हो गया X सॉरी इत्थे NE ओवर मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर W पा लो। इत्थे वाटर में W लिख लिया। तो की करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल के किन्ने आए ने 2.06 ओवर फिर 2.06 प्लस दूसरे दे आए सी अपने 0.277। ठीक है जी। इसनूं तुसीं ऐड करके बस जो भी रिजल्ट आ जाऊगा उन्हें कढ़ लो। तो तुसीं कढ़ ही सकते होंगे। ओवर इसकी एडिशन कर लो, बन गया 2.34। तो इसनूं ऐड करके कर दो 0.88 आ गया। ये कोई भी यूनिट नहीं लाना क्योंकि उपर भी मोल हेठां भी मोल आपस दे विच कैंसल हो गए। इस तरह ही तुसीं पानी का कढ़ सकते हो ना। नैक्सट न्यूमेरिकल आ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन ए मिक्सचर ऑफ 12 ग्राम वाटर, 108 ग्राम एस्टिक एसिड एंड 92 ग्राम इथेनॉल। देखो हुण इहनूं किस तरह कढ़ना है। मोल फ्रैक्शन आपां पानी का कढ़ना। इहदे विच पानी कितना दिता होया 12 ग्राम, पानी हैगा 12 ग्राम वाटर और फिर है 108 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड। 108 ग्राम एस्टिक एसिड की हुंदा, फॉर्मूले आने चाहिए बेटे तां निकलणगे। जे नहीं दिता होगा ना न्यूमेरिकल तो तुहानूं आना चाहिए फॉर्मूला। और नैक्सट है 92 ग्राम इथेनॉल। 92 ग्राम इथेनॉल एथ बन गया C2H5 इथेनॉल आ तो OH लग्या होगा नाल। उस तरह ही सेम न्यूमेरिकल तुसीं अपने आप करियो हुण, क्योंकि जे मैं हर न्यूमेरिकल कढ़न लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जूगी। 12 ग्राम का जिस तरह मैं तुहानूं पहलां सॉल्व करके दस्सिया ना, 12 ग्राम देखो दिता होया, इस तो वेट दिता उस तो आपां 95% चो कढ़िया सी। 12 ग्राम दिता होया तो तुसीं इसका की करना मोलर मास आ जिहड़ा मास जिहड़ा 12 आ ओवर मोलर मास कर देना तो तुहाडे मोल्स आ जाणगे। फिर इहदे मोल्स आ जाणगे, इस तरह इस दे मोल्स आ जाणगे। नैक्सट फिर तुसीं की करोगे, आपां पानी दे कढ़ने ने ना, पानी दे जिन्ने मोल्स आ गए, पानी दे मोल्स किन्ने आ गए N, वाटर दे पा लो इत्थे W लिख लो, इत्थे लिखो तुसीं W ओवर फिर N मोल्स किहदे लवांगे आपां वाटर दे प्लस N मोल्स किहदे लवांगे आपां एस्टिक एसिड आ ना दूसरा एस्टिक एसिड इत्थे ए पा लो प्लस फिर N मोल्स किहदे लैणे आपां इथेनॉल दे E। इन्हां नूं तुसीं तिन्नां नूं नीचे जिहड़े मोल्स निकलणगे उन्हां नूं ऐड करोगे तो पानी दे मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े उपर लिखोगे मोल्स उपर लिखोगे तो ये की आ जाऊगा X किहदा आ जाऊगा W मोल फ्रैक्शन W दा आ जाऊगा। इस तरह तुसीं इस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट न्यूमेरिकल आ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 15% सल्फ्यूरिक एसिड। जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का सैंपल आ साडे कोल वो 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट आ, जिहदी डेंसिटी कितनी आ 1.10 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट की करनी आपां नॉर्मैलिटी। हुण नॉर्मैलिटी कढ़नी आ, देखो किस तरह कढ़ोगे। नॉर्मैलिटी का न्यूमेरिकल भी एक कढ़ लीए हुण आपां ते तुहानूं प्रैक्टिस हो जूगी। फिर इहदे नाल रिलेटेड तुसीं न्यूमेरिकल्स ना करियो अपने आप ही लभ के।
ਜਾਂ मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच भी पा दूँगी न्यूमेरिकल्स उत्ते उन्हां नूं सॉल्व करियो। हुण 15% का की मतलब होया 15% अपने कोल की है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इट मीनस की हो गया 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड किहदे विच आ प्रेजेंट इन 100 ग्राम of solution 100 ग्राम सोल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी का जोड़ा सोल्यूशन है 100 ग्राम यानी कि विद वाटर जो आप सोल्यूशन बनाया टोटल जो सोल्यूशन बनया होया वो 100 ग्राम वो 15 ग्राम की है 100 ग्राम के बिच आ 15 ग्राम बाकी का पानी है। ये गल नूं समझो तुसीं ध्यान नाल समझ गए ना। ਇਹਦਾ मतलब हुण आपां 15 ग्राम तो अपने कोल की है सल्फ्यूरिक एसिड आ किवें कड्डोगे फिर तुसीं आपां कड्ढना की है नॉर्मैलिटी कड्ढनी है। पहलां तां तुहानूं नॉर्मैलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। नॉर्मैलिटी किहदे बराबर है ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर दे विच लै लो जे मिलीलीटर च लओगे तो 1000 दे नाल तुसीं मल्टीप्लाई करोगे उसमें। हुण आपां नूं इहदा मतलब पहला तो अपने को वॉल्यूम सोल्यूशन का है नहीं गा पहला तो आप वॉल्यूम कड्ढीए आपां नूं डेंसिटी दित्ती हुई है वॉल्यूम कड्ढो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कड्ढना आपां हुण वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी वाला फार्मूला ला लिया आप मास कितना 100 ग्राम सोल्यूशन का कढ़ रहे हैं ना आप सोल्यूशन का मास कितना 100 ग्राम ओवर डेंसिटी कितनी है 1.10 कितना हो गया है 90.9 मिलीलीटर। हुण इहदे विच आपां इस फार्मूले दे विच वैल्यू पावांगे इत्थे आपां कड्ढने आ ग्राम इक्विवेलेंट्स कड्ढण दे लई देखो की करांगे आपां हुण आपां नॉर्मैलिटी कढ़ देंगे N इज इक्वल टू वॉल्यूम तो अपने कोल आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स लैने ने ग्राम इक्विवेलेंट हुणे मैं तुहानूं दस के हटिया किहदे बराबर हुंदे ने मास सल्यूट दा ओवर इक्विवेलेंट मास अपने को सल्यूट का कितना है 15 हुण इक्विवेलेंट मास किहदे बराबर हुंदा है मोलर मास ओवर वैलेंसी मोलर मास होने का आप सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कड्डांगे फिर पहला मोलर मास H2SO4 का SO4 मोलर मास कड्डांगे आप इहदा कितना हो जाऊगा 1 × 2 + 32 + 16 × 4 ये तो तुहानूं वैसे याद ही हो जाने चाहिए बेटे ये बन गया 98। मोलर मास देखो 98 आ गया हुण आपां इहदा कड्ढना की है इक्विवेलेंट मास इहदे विच्चों तुहानूं मैं हुणे दस के हटी हाइड्रोजन किन्ने निकलणगे मोलर मास इहदा हो गया हुण 98 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ 2 ਐਟਮ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ 98 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 49 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ n = ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ सब तो पहला आप लिखना है मास ऑफ सल्यूट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का मास अपन कितना दिता है 15% सी ना 15 ग्राम हो गया तो ओवर आप करना हम मोलर मास ओवर वैलेंसी आप हुणे देखो कढ़ हटे ये वाला मोलर मास ओवर वैलेंसी कितना आ गया 49 तो इत्थे आप लिखांगे फिर 49
इनटू ओवर वॉल्यूम आपां किन्ना कढ़िया हुण 90.9 जिहड़ा आपां हुणे डेंसिटी दे नाल वॉल्यूम कढ़िया सी 90.9 की है मिलीलीटर। इनू मल्टीप्लाई कर दो 1000 ते। ठीक है बेटे, इस तरह तुसीं इसनूं सॉल्व कर सकते होगे। ये आलमोस्ट सॉल्व होके तुसीं देख लो आह वाला पॉइंट है जे चक दो तुसीं उपर 90.9 वाला जिहड़ा उपरले पासे एक सिफर होर आ जूगी तो उसनूं तुसीं मल्टीप्लाई करके ये बन गया 15 इंटू 1000 इंटू 10 ओवर हो गया 49 इंटू 909 की बन गया फिर मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 15 1 2 3 4 ओवर इस नूं जेकर तुसीं मल्टीप्लाई कर दिंदे हो तो बन गया 44541 49 ते 909 नूं मल्टीप्लाई कर दो ना तो ये वाला आ गया। तो नैक्सट तुसीं ये वाला जिहड़ा डिवाइड करके आ जाऊगा 3.36 नॉर्मैलिटी का एन पाना तुसीं इहदे नाल जां ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर करोगे तो जां तुसीं लिखोगे 3 नॉर्मैलिटी कल्ला एन पाओगे तुसीं 3.36 आ गया इसका आंसर आ गया इसका। नैक्सट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रेटेड है 5 मॉलिक्यूल्स ये वाटर दे हैं सोल्यूशन 1.24 ग्राम ऑफ विच आर डिजॉल्वड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। हुण आपां फॉर्मेलिटी कड्ढनी है ये, ठीक है जी, फार्मूला मास लैना आपां ये देखो हुण सोडियम थायोसल्फेट आ पहलां उस तरह इसका आपां नूं फार्मूला मास कड्ढना पेगा इहदा Na2S2O3 और 5 मॉलिक्यूल्स ये किहदे ने वाटर दे। सोडियम का कितना हो गया 23 इंटू 2 सल्फर 32 इंटू 2 और ऑक्सीजन 16 इंटू 3 तो प्लस 5 इंटू 18 पानी का हमने आप कट के भी हटे 18 होंगे ये टोटल होके आ जाऊगा 248। हुण तुसीं बस फार्मूला लगा लेना ये देखो अपना की दिता है सोडियम सोल्यूशन 1.24 ग्राम ऑफ विच जान कि सोडियम थायोसल्फेट का अपन वेट दिता होया डिजॉल्वड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का अपन वॉल्यूम दिता होया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। हुण सेंटीमीटर क्यूब तुहानूं पिछली वीडियो च दस्सिया सी की हुंदा है 100 ml यानी कि ये 100 मिलीलीटर बन गए। सोल्यूशन ये दिता होया और वेट कितना दिता होया अपन वेट ऑफ सल्यूट लिख लो वेट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 इज इक्वल टू 1.24 ग्राम इन्ना दिता होया। हुण फॉर्मैलिटी का आप फॉर्मूला लगा लें फॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला मास के आप मोल्स कढ़ने नंबर ऑफ मोल्स किमें कढ़ांगे आप वेट आ जिहड़ा वेट कितना दिता 2.4 ठीक है जी ओवर 248 जिहड़ा उहदा मोलर मास हो गया जिमें कि आप मोलैरिटी च कढ़ देंगे मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम तो इनटू 1000 लीटर के कढ़न के लिए क्योंकि मिलीलीटर के है 100 के नाल 100 ये तो कट हो गया ये और नैक्सट हो जाऊगा ये 1.24 सी ना पॉइंट नूं खत्म कर दिए जी आप नीचे ला दो तुसीं 100 इंटू 248 इंटू कितना हो गया ऊपर से 10 रह गया 10 ये वाली सिफर है जी इनू भी इन्ना कट कर दो तो ये 2 ते कटे जाएगा 248 224 212 कितना हो गया 1/20 इट मीनस ये आंसर कितना आ गया फिर पॉइंट 1/20 आप जो डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाऊगा 0.05 F फॉर्मैलिटी ये इसका आ गया आंसर।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਉਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੇਟ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 2-3 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵੇਟ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ 3-4 ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੇ, ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਮੋਲੈਰਿਟੀ, ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।